Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in today's orientation. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri. First of all, today we have so many aspirants who are aspiring for CSS 2022 and other, and also PMS aspirants. So today's orientation is about the English language comprehension and preparation. And the agenda of today's orientation is before all of you. Can you people see the screen? Yes, sir. Okay. The agenda of today's orientation is first of all introduction to all of you as well as my introduction. And then we will discuss that what is the scope and what are the chances. And then after that, we will discuss paper pattern. That is the most important thing before going ahead. And then we will talk about tricks and tips. And one person who is working hard and he is blindly running, so that person cannot achieve his goal. You should run fast, but with sensibly, and we have to work smartly. And after that, I'll tell you our testing system, that how you people will be evaluated. Or we have some worksheets and other things. And then we will discuss some success stories and scheme of studies, that how we will go through this whole class of 40 days, and facilities, what are the facilities that we have for all of you. And at the end, we will have a question answer session, and I'll ask you your valuable suggestions regarding the improvement of this session. So starting from my introduction, as you know that my name is Mohammad Nadeem Chauhan. I have got the degree of PhD in English from University of Management and Technology. And I'm working as an assistant professor of English at Government Islamia Graduate College, Civil Lines, Lahore. So this is from my side. And the participants we have here, almost, if we start introducing all of you, then it will take a lot of time. So then we will do it at the end, inshallah. Coming to the next point, that is scope and chances. All of you are well aware that CSS or CSP officers, why you people want to become a CSP. Obviously, every person has right to excel and to work in a comfortable and authoritative position. So being a citizen of Pakistan, it is your fundamental right actually to get the good job, and you can be a CSP. Perks and privileges, all of you are well aware of the perks and privileges of being CSP. And the thing that we need to be a CSP or to get through the examination, that is one thing is determination, that you people have to work with determination, and you have to burn the boats. Burn the boats, आप समझते हैं कि जब हम पीछे जाने के रास्ते जब हम सारे बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो अगर जरा सा भी आपके पास थोड़ा सा पीछे हटने का मौका होता है, तो बहुत से लोग उसमें से वापस हट जाते हैं. और ये आपने सुना हुआ है कि बर्न द बोट्स का एक्चुअली वर्क मतलब क्या होता है. तो उसके बाद रिगरस हार्ड वर्क की जरूरत है. इट्स नॉट एग्जाम ऑफ metric or FSC that you will do less work and you will get 1100 out of 1100. The situation is before all of you.
So it's going to be a tough competition, because competition here in Pakistan is always tough. And when we talk in term of CSS, it's a very tough competition. And so many of you have already attempted the some examination of PPSC or FPSC. So they are well aware of the competition, because first of all, you will have to pass the screening test. This is the first filter, and then you will be given the final exam of CSS. And if you have passed that exam, then you will have to psychological test and interview, and after that your allocation will be. So it's a tough competition, and you have to work hard. Then we'll see the paper pattern, because our main concern is with the comprehension and Pressy part. There are two English papers. One is essay writing, and the other is comprehension and Pressy. So paper pattern is you will be given a Pressy paragraph for Pressy of 20 marks. After that, there will be comprehension that would also carry 20 marks, and the translation, vocabulary, correction, punctuation, pair of words, idioms, analogy, prepositions, dialogues to paragraph. अब इसमें होता क्या है कि बाज औकात एक चीज वो स्किप करके उसकी जगह दूसरी चीज डाल देता है। ठीक है जी। तो ये मतलब टोटल आपका पेपर पैटर्न है, जिसमें सारी चीजें इस तरह से ही आपको आएंगी। जी, क्लियर होगी जी बात। उसके बाद हम देखते हैं Yes. किस तरह से हमने तैयारी करनी है। याद रखें कि जो एक घोड़ा है जो कि ब्लाइंडली भागता है, वो आगे जाके दीवार में ही लगता है। ठीक है जी। तो हमने सेंसिबली वर्क करना है, स्मार्टली वर्क करना है। हमने एक ब्लाइंड हॉर्स की तरह नहीं भागना, और स्मार्ट वर्क करना है, और अलर्ट रहना है। अलर्ट इन व्हाट सेंस? देखिए, अलर्ट रहने का मतलब है कि व्हाट इज गोइंग ऑन in the surrounding. So you would be very careful about the things, and you are to observe the thing. तो आज इंटरव्यू पीपीएससी में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसमें आज जो सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा जी ये सुबह क्या न्यूज आई है पाकिस्तान के हवाले से। अभी मतलब सुबह न्यूज आई है और इंटरव्यू में पूछी गई है। तो इसलिए जो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, और जब आप व्हेन यू कम टू अटेम्प्ट द पेपर, तो यू शुड वर्क प्रूडेंटली। बड़ा प्रूडेंट वाइज डिसीजन लेके आपने उसको करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी वॉइस हैंग हो जी, आवाज हैंग हो रही है जी। अब कुछ बेहतर हुई है? यस सर। अच्छा जी। अब ये तो होगी सारी बातें कि हमने करना क्या है, कैसे करना है। ये बहुत सी चीजें आपने पहले भी सुनी होंगी। और ये जी जो हैंड रेज कर रहे हैं, एक्चुअली मैं उनके क्वेश्चंस एंड पे लूंगा। लेट मी फिनिश फर्स्ट एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब ये तो सिचुएशन सारे ये आपको पता है, इसमें कोई नई चीज हमने नहीं की कि मेहनत तो करनी पड़ती है। अब हम अपने सेशन की बात करते हैं कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो देखें जी, हमने ये जो महफिल सजाई है आपके लिए, इसमें देखें कि आपने लेक्चर से पहले क्या करना है और लेक्चर के बाद क्या करना है। बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव 3 सेशंस इन अ वीक। ठीक है। और एक दिन में हमारे 2 सेशंस हुआ करेंगे, और एक सेशन में हमारे पास जो है वो होगा लेक्चर होगा, और दूसरे सेशन में हम जो है वो बात करेंगे वर्कशीट्स पे। अब ये जो वर्कशीट्स हैं हमारे पास, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलता हूँ कि ये जी हमारे पास वर्कशीट है। सर
जी आवाज नहीं आ रहा है सर। आपको नहीं आ रही है? सबको ही नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है, लेकिन ये कट कट के आती है, फिर वो कुछ आपकी बातें अंदर समझ ही नहीं आती। आपने पहले क्या कहा है? अच्छा जी, मेरी तरफ से तो चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं। सर एनीवे, एरियाज में नेटवर्क इशू है, जिनको आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक वहाँ पे नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं सर, हमारे तो वाईफाई के फुल सिग्नल आ रहे हैं। अब नासा से ले लें नेट। ये भी आपने ठीक फरमाया है, नासा वालों को इधर ही बुला लेते हैं। एनीवेज चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीकली प्लान। आई विल शो यू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अ वीक। तो वी हैव 6 weeks क्लासेस। दिस इज स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। इसमें जो सर हमें स्क्रीन नहीं आ रही। जी अब आई है हाँ जी, हाँ जी सर, अब हुई है सर। जी। इसमें जो है आज हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो लोग हमारे कोर्स में इनरोल होंगे उनका हम एक इवेलुएशन या प्री टेस्ट ले लेंगे। दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, और वो गूगल फॉर्म्स पे होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपको पेपर आना है। ठीक है, तो वीक 1 की जब हम बात करेंगे तो वीक 1 में जो हमारी 3 क्लासेस हैं उसमें पहली क्लास जो है उसमें हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे और साथ एक टेंस करेंगे, और दूसरे सेशन में मैं आपको कंप्रीहेंशन करना सिखाऊंगा। आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत से सेशंस पढ़े होंगे और उनको पता भी होगा कि कंप्रीहेंशन कैसे करनी है, बट आई विल ट्राई टू मेक सम डिफरेंस। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो क्लास होगी उसमें हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और एक हम वर्कशीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। वर्कशीट अभी मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या है। क्लास 3 में हम जो है फ्यूचर टेंस करेंगे, और जो ही उस और सेशन 2 में हमारे पास वर्कशीट 2 आ जाएगी। हर क्लास में एक वर्कशीट हम करेंगे, और एक वर्कशीट ऑलमोस्ट 15 पेजेस की है हमारी, और उसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो आपको पेपर में आनी है। ठीक है जी। जब ये हमारा वीक कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द वीक वी विल हैव अ टेस्ट ऑफ टेंसेस। टेंसेस का टेस्ट गूगल फॉर्म पे होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 एमसीक्यूज दिए होंगे, उनके नीचे ऑप्शंस होंगी। उससे क्या फायदा होगा कि आपके जो टेंसेस हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। गॉट इट जी? अच्छा, यस सर। आगे हम यस सर। वीक 2 पे आ जाते हैं। वीक 2 के बिल्कुल फर्स्ट सेशन में हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, एक्टिव पैसिव को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और दूसरे सेशन में आपको वर्कशीट नंबर 3 मिल जाएगी। ठीक है, ये वर्कशीट आपको उस लेक्चर से पहले मिल जाएगी, वो आप अपने तौर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको आप हल करेंगे, और आगे हम सेकंड सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। यानी पूरी वर्कशीट को हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे? क्लास में, ताकि किसी ने कोई गलत किया हुआ है या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो उस वर्कशीट को हम एक सेशन में लेक्चर होगा जिसके ऊपर जिसमें हम लेक्चर मोड पे चलेगा, और दूसरा वर्कशीट पे होगा। क्लियर होगी जी बात? अब वीक 2 पे आ यस। जाए। इसमें हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करेंगे, और प्रेसी करना मैं आपको सिखाऊंगा, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स। प्रेसी जितनी आपको आसान लगती है उतनी ये है नहीं, और जितनी ज्यादा आपको मुश्किल लगती है उतनी ये मुश्किल है भी नहीं। अब आप कहेंगे सर ना मुश्किल है ना आसान है, तो फिर ये है क्या? तो ये जब मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह आप इंजॉय भी करेंगे और आप दूसरों से बेहतर प्रेसी कर लेंगे। ठीक है जी। और इसमें ही सेकंड वीक में आपको वर्कशीट 5 भी मिल जाएगी, और इस सेकंड वीक के एंड पे हम आपका एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे, जिसमें 100 सेंटेंसेस होंगे। ऑप्शंस विल बी देयर, आपने बस जस्ट उनको क्लिक करना है। ठीक है जी। अब हम आते हैं वीक 3 की तरफ। वीक 3 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेक्चर होगा नाउन पे, उसकी पूरी जो है टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका यूसेज करेंगे, और फिर उसके साथ आपको वर्कशीट मिल जाएगी। अगले सेशन में हम प्रोनाउन पे बात करेंगे, और उससे अगली क्लास में और उससे अगले सेशन में हम वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो है वो वर्ब पे लेक्चर होगा, यूज ऑफ वर्ब और उसका इस्तेमाल जो भी है, और उससे अगले सेशन में हम पंक्चुएशन डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक वी विल हैव अ टेस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है ये आपके पेपर में आने हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो वो पैराग्राफ राइटिंग
या डायलॉग राइटिंग को पैराग्राफ राइटिंग में कन्वर्ट करने की सूरत में आ सकते हैं, या फिर आपके वो पेपर जो है डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है जी। तो ये आपके तीसरे वीक के बाद आपके टेंसेस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो सिंपल लेवल पे आपकी ग्रामर है वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद वीक 4 पे जब हम आएंगे तो उसमें हम सबसे पहले एडवर्ब की बात करेंगे और मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम वैसे तो आप ट्रांसलेशन माशाल्लाह से करते चले आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वर्ड टू वर्ड करनी है, बा मुहावरा करनी है, और किस तरह से हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात। देन वी विल मूव, और उसके साथ ही आपको वर्कशीट 9 आपको मिल जाएगी, और नेक्स्ट सेशन क्लास में हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और वर्कशीट होगी। फिर अगले में हम आर्टिकल का यूज करेंगे, और इस वीकेंड पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें जो 100 मार्क्स का होगा उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, 50 सिनोनिम्स होंगे और 50 एंटोनिम्स होंगे। उससे भी आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो आपके टेस्ट हैं ये सारे प्रीवियस पेपर्स में से नहीं होंगे। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि प्रीवियस पेपर ज़रा इजीली अवेलेबल होते हैं तो लोग उसी में से टेस्ट बना के दे देते हैं। तो ये मिक्सर होगा प्रीवियस पेपर्स का और लेवल्स का। जैसे जब पेपर हम बना के देते हैं तो उसमें 3 लेवल पे पेपर बनाते हैं। उसमें कुछ जो है इजी चीज़ें रखते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल की रखते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट रखते हैं। ठीक है जी। तो ये मतलब हमारा जो लेवल है वो हम तीनों लेवल्स को कैटर करेंगे यहाँ पे। ये सिनोनिम एंटोनिम्स का 100 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद वीक 5 में हम एंटर होंगे तो उसमें कंजंक्शन इंटरजेक्शंस होगी, उसका इस्तेमाल होगा, वर्कशीट आपको मिलेगी, और अगली क्लास में हम एनालॉजीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो है आपको वर्कशीट नंबर 13 मिल जाएगी। और थर्ड जो क्लास है उसमें हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे और वर्कशीट नंबर 14 आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का 100 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपका 5वां टेस्ट है 5वें वीक के एंड में। उसके बाद 6 वीक में जब हम आएंगे तो उसमें हम इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है, मतलब उसके कुछ हल्की फुल्की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और वर्कशीट नंबर 15 आपको मिल जाएगी। और उसके साथ ही आगे आप जब बात करते हैं अगले क्लास की, उसमें डायलॉग टू पैराग्राफ राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 2 तरह से आ सकती है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से में, और फिर उसके बाद जो है डायलॉग राइटिंग की सूरत में। और साथ ही वर्कशीट नंबर 16 आपको मिल जाएगी, और साथ एक एंड पे जो है वो हमारी क्लास होगी हाउ टू अटेम्प्ट द फाइनल पेपर, और साथ ही वर्कशीट मिल जाएगी। तो इस तरह ये हमारा सिलसिला 6 वीक्स का चलेगा, और पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्त। ठीक है। इसके बाद टेस्ट 6 आपका आ जाएगा, एनालॉजीज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 100 मार्क्स का मैं लूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है आपके टेस्ट नंबर 7 जी म्यूट करवाएं बाद। म्यूट कर ले, मैंने कर दिया जी। अच्छा, टेस्ट 6 जो है वो एनालॉजीज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस करेगा, और टेस्ट और 100 मार्क्स का होगा। टेस्ट 7 जो है वो इडियम्स और जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का होगा, 100 मार्क्स का। फिर टेस्ट 7 जो है वो फिर करेक्शन ऑफ एरर पे होगा। एक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हो गया और वो भी इसी पैटर्न पे होगा, और 7 टेस्ट जो है वो करेक्शन ऑफ एरर पे होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद जो है टेस्ट आपका कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी का होगा। ठीक है, क्योंकि वर्कशीट में शामिल है, ये हम रोज करेंगे, लेकिन टेस्ट इनका एक हम ले लेंगे। इसके बाद मैं आपके 3 मॉक टेस्ट लूंगा जी। फुल पेपर टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का बिल्कुल एन उसके CSS PMS के पैटर्न के मुताबिक, और उसको चेक करके आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा टाइमली। ये नहीं कि आपने पेपर दिया, आप दे के भूल गए और मैं लेके भूल गया, जैसे आमतौर पे होता है। ठीक है, तो ये 3 जो हैं आपके इंशाल्लाह मैं मॉक टेस्ट भी लूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा प्लान है, बस आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
हमें इस पूरे जो है प्लान को एग्जीक्यूट करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेंटेन द होल थिंग्स। अच्छा, इसके बाद जो अब हमने काफ़ी बात की है कि जो अभी वर्कशीट्स आप कहेंगे कि ये पता नहीं सर ने क्या वर्कशीट्स बना दी हैं। तो देखें, वर्कशीट्स जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये हमारी वर्कशीट नंबर 1 है। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्कशीट में इंक्लूड क्या क्या चीज़ें हैं। जी, वर्कशीट में आपकी सहूलत के लिए टेंसेस 12 टेंसेस होंगे, 12 टेंसेस से 12 से फिक्रे होंगे जो कि आपको दिए गए होंगे। आपने उनको सही करके फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्शन करके आपने उसको लिखना होगा। टेंसेस आपके रोज रिवाइज हो रहे हैं क्योंकि हमने हर रोज एक वर्कशीट करनी है। उसके बाद पैसिव वॉइस, उसमें देख लें कि राइट अ सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, रिवाइज पैसिव वॉइस बिफोर अटेम्प्टिंग दिस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है जी, ये पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस है। 10 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। ये बिल्कुल ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, नीचे खाली जगह छोड़ी हुई है। ये आपको एज इट इज सेंड की जाएगी। आप इसका प्रिंट लेके उसको फिल करेंगे और फिर हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे और आप अपनी जहाँ पे गलती है उसको सही कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के हैं 10 सेंटेंसेस। ठीक है, जो हर रोज आपको दिए जाएंगे। इसी तरह बना के वर्कशीट आपको सेंड की जाएगी और उसको आप फिल करके हमें क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके करेक्शन के आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आ गई। उसके बाद ये सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ये इसको मैंने एक कोशिश की है कि आप एक दफ़ा जो आपके सामने आ जाए उसको आप अच्छे तरीके से कर सके। जैसे ऑथेंटिक है तो इसका आप खुद से उर्दू में मतलब लिखेंगे, इसके सिनोनिम्स भी लिखेंगे, इसके एंटोनिम्स भी लिखेंगे। ठीक है, और उसका सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है जी। अब जब आप उसका सेंटेंस बना लेंगे, आगे मैंने एक जगह एक स्लॉट छोड़ी है एसोसिएशन की। एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे है कि जब हम कोई पंजाबी में जैसे टेवा नहीं होता, टेवा समझते हैं ना, कि हम कोई ऐसा एक गैस बना लेते हैं, एक ऐसी की बना लेते हैं जिसके जरिए से हम उस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो ये अपनी अपनी पर्सनल होती है। ठीक है, तो वो मैंने स्लॉट वहां पे छोड़ दिया है ताकि आप उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको लिख सके। ठीक है, और वो आपको याद रहे। ठीक है जी। ये पहली वर्कशीट हमारे सामने कंप्लीट है, जो कि आप जब हम क्लास शुरू करेंगे उससे पहले आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसी तरह से आ जाएंगे। इसके हर सिनोनिम्स, हर जो वर्ड है, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्या उसको कहते हैं, हैम्पर है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है ये हम देखेंगे। उसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, उसके एंटोनिम्स कौन से हैं, उसका फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद फिर हम एसोसिएशन डेवलप करके उसको हम लिख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसी तरह चलेंगे। और उसके बाद जो है ये आपके आ जाते हैं इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स में भी हमने वही पैटर्न फॉलो किया है। जैसे हमारे पास इडियम है विद अ हाई हैंड, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके मीनिंग्स लिखेंगे और इसके 2 सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है जी। और वो सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हर सेंटेंस में सेंटेंस फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस नहीं बनाना। ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें कोई करंट अफेयर की थॉट आए, जिसमें कोई जो है एवरीडे साइंस की थॉट आए। ये इस तरह से ये 5 आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और 5 आपके हैं क्या उसको कहते हैं, इडियम्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है इसमें वो है आपकी एनालॉजीज। वो ऐसे ही दी हुई है, ये आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देनी है। ये जानबूझ के मैंने नीचे ऑप्शंस नहीं लिखी। जैसे सैंपल इज टू यूनिवर्स, एज सैंपल इज टू यूनिवर्स, इंडिविजुअल इज टू। अब ऑप्शंस आपको दी होंगी, लेकिन मैंने इंटेंशनली यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डाली। क्यों? क्योंकि आप उसको खुद ढूंढेंगे।
ढूंढने के बाद जब आप उसको लिखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी एज कंपेयर टू पकी पकाई खीर के। ठीक है जी। तो ये आपके जो है 10 जो है वो आपके एनालॉजीज हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऊपर आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उसका वर्ड आपने खुद बनाकर लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रांसलेशन, दैट इज वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम हर रोज एक ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम हर रोज 2 ट्रांसलेशन करेंगे। इस तरह आपको शीट मिलेगी, ऊपर ट्रांसलेशन लिखी होगी, नीचे ये मैंने जगह छोड़ी है, आपने उसको ट्रांसलेट करके इसमें लिखना है। ठीक है। ये 2 पैसेजेस ट्रांसलेशन के, हर रोज आप हर वर्कशीट में आपको 2 ट्रांसलेशन मिलेंगी जो आप खुद करेंगे और फिर हम इसको क्लास में रिवाइज करेंगे। उसके बाद है प्रेसी। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसकी आप प्रेसी बनाएंगे, नीचे जगह छोड़ी हुई है उसी में लिखेंगे। हर रोज हर वर्कशीट में एक प्रेसी एडेड है, उसका टाइटल आप लिखेंगे। और उसके बाद आपकी आ जाती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज आपको दिया होगा, जैसे यहाँ पे है, पेस्ट किया हुआ है किसी जगह से लेके, तो वो आप नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट है जो कि 15 पेजेस पे जो है मुश्तमिल है। और ठीक है, आपके ख्याल में ये वर्कशीट बेहतर रहेगी या नहीं? सर सही रहेगी। हाँ जी। अब ये चीज ये है कि हर रोज ये आपको वर्कशीट मिलेगी, आपने इसको करके रखना है और फिर हम उसको जो है वो क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अगर ये सेशन अभी बंद हो जाता है तो आपने दूसरा सेशन जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी। तो इफ यू हैव क्वेश्चन अप टिल नाउ तो यू मे आस्क। कोई अभी तक का आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अगर ये सेशन जून बंद होगा तो यू कैन अगेन रीजॉइन इट। जी, कोई क्वेश्चन आपका? सर वर्कशीट के रिलेटेड है कि जो वर्कशीट आप हमें देंगे फिल करने के लिए कि हम ये वर्कशीट फिल कर रहे हैं, सर उसका हमारे पास जो प्री रीडिंग मटेरियल होगा वो आप कुछ गाइड करेंगे कि हम कुछ अपनी बेस यहाँ से बनाएं फ्रॉम जीरो टू कंडक्ट टिल वर्कशीट अटेम्प्ट करने के लिए, जी ताकि पहले हम इतनी बेस तो इकट्ठी करें ताकि हम वर्कशीट सॉल्व कर सकें। जी बिल्कुल, उसके लिए मैं पहले आपको जो ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा, आप उन बुक्स को स्टार्ट कर देंगे, साथ साथ हमारा लेक्चर भी होता रहेगा।